Good morning, everybody. Good morning. Okay, we have completed that oxidative phosphorylation. ATP तो मैं तुमने काउंट कराई था, बट तो भी આપણે જોઈ લઈએ અલગથી કે જે આપણને ઓક્સિડેટિવ ફોસ્ફોરીકરણ માટે જે આખું ચાર ટાઈપો છે જે આપણે બરાબર તમને ખબર છે કે આપણા સૂત્રનું શું છે બાહ્ય પટલ means outer membrane, outer mitochondrial membrane, right? तो outer membrane છે you know that this one is an intermembrane space and this one is inner membrane, અંતઃપટલ, inner membrane. Okay, and you know that कि भाई in inner membrane complex 1, complex 3, complex 2, complex 4 and complex 5 means electron carriers અહીંયા આવેલા છે. See, there are 4 components which are distributed in the form of complexes, 4 complexes. પણ હવે મેં અંદર લખ્યું નથી FMN iron sulfur containing protein ubiquinone decyclone C A B C1 etc મેં લખ્યું નથી રાઈટ કારણ કે હવે આપણે શું સીધું ડાયરેક્ટલી ATP કાઉન્ટ કરવા છે ઓલરેડી ત્યારે બી આપણે જોયેલું જોઈએ આપણે કે ભાઈ કેટલા ATP બને છે આવા એ જોવાનું છે આપણે રાઈટ ઓકે જો યુ નો ધેટ કે ભાઈ एक्चुअली आ जगह NaDH2 નો ઓક્સિડેશન થતું તો અમે કોમ્પ્લેક્સ 1 સેજ સ્પેસ કરીને કોમ્પ્લેક્સ 1 છે you know that this one is a complex 1 NaDH2 નો ઓક્સિડેશન થાય when oxidation of NaDH plus H occurs and NAD release થાય at that time you know hydrogen ions move towards અહીંયાથી હાઇડ્રોજન કઈ બાજુ જાય છે here you know that 4 hydrogen complex 1 જે છે ત્યાંથી અહીંયા 4 હાઇડ્રોજન આવી છે રાઈટ અને ઇલેક્ટ્રોન જે છે પાસ ઓન થાય છે હે ને આવી રીતે તમને ખબર છે કે ભાઈ ઇલેક્ટ્રોન તો પાસ ઓન થશે from here to you know that directly અહીંયા કારણ કે આ સાઇટોક્રોમ C પાસે આવે and it reaches here જ્યાં ઓક્સિજન આવ્યા હોય એટમોસ્ફેરિક ઓક્સિજન અવેલેબલ હોય બરાબર तो इलेक्ट्रॉन आयन સુધી આ મૂવ થઈ રહ્યા બટ હાઇડ્રોજન જ્યારે ઇલેક્ટ્રોનનું વહન થાય છે when electron passes through this electron transport system at that time complex 3 પાસે આવે ત્યારે શું થાય છે ત્યારે પણ શું થશે હાઇડ્રોજન આ બાજુ શિફ્ટ થશે આપણે એવું બતાવેલું કોમ્પ્લેક્સ 2 જે છે એ કોઈ પણ હાઇડ્રોજન આ બાજુ શિફ્ટ નથી કરતા બટ કોમ્પ્લેક્સ 4 આ દરમિયાન પણ શું થાય છે હાઇડ્રોજન શિફ્ટ થાય છે and we have written over here you know that the 2 hydrogen molecules right આપણે એક NaDH plus H નો ઓક્સિડેશન થાય ત્યારે 4 આ 4 અને 2 ટોટલ કેટલા હાઇડ્રોજન 10 હાઇડ્રોજન મોલેક્યુલ્સ આ બાજુ પાસ થાય છે હવે આપણે યાદ કરવું છે ગ્લાયકોલિસિસ ને બરાબર રિમેમ્બર ગ્લાયકોલિસિસ રિકોલ કરો કે ગ્લાયકોલિસિસ આપણે ભણ્યા હતા તો ગ્લાયકોલિસિસ દરમિયાન during glycolysis glucose when glucose get converted into pyruvate at that time you know that 2 molecules of NaDH2 produced मैं जनरली आ बाजू लिखा બે NaDH2 આપણને મળતા હતા and
pyruvate enter inside, two molecules of pyruvates are formed at the end of this Krebs cycle. Ion एक NaDH2 एक NaDH2 ion. Then you know that over here one NaDH2, here NaDH2, then here also NaDH2. Same distance. Okay. C. In shortage हमें वो लखो छो. It occurs in a mitochondria. You know that. कि ये तो कहाँ पे होगा? ये पाइरुवेट ही आप समझ लीजिए कि जो माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर हो गया है, और ये अंदर हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में, ये साइटोप्लाज्म में. That you know. तो इसकी बात करनी है हमें. चलो. ग्लाइकोलिसिस मैं लिख रही हूँ यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस. Then Krebs cycle, but before Krebs cycle, you know that oxidative decarboxylation of pyruvate takes place. Oxidative decarboxylation. यहाँ पे मैं लिख रही हूँ oxidative decarboxylation. Link reaction, you can write link reaction. Of pyruvate, and then you know that Krebs cycle. Three processes. मैंने लिख दी यहाँ पे. आ ત્રણ પ્રક્રિયા, એક તો ગ્લાયકોલિસિસ, then oxidative decarboxylation, then Krebs cycle. ગ્લાયકોલિસિસ એક વખત જ આપણે કાઉન્ટ કરવાના છે. હવે યાદ કરો NaDH2 કેટલા બન્યા હતા. During glycolysis, two molecules of NaDH2 are produced. You know that. Oxidative decarboxylation को याद कीजिए, ये वाला 1 and 1 2 NaDH2 अगेन. तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 2 NaDH2. अब Krebs cycle को याद कीजिए, उसमें NaDH2 कितने बने? Krebs cycle तो मैंने बोला ना. Krebs cycle ने याद करो. Krebs cycle तो क्या थी स्टार्ट થશે? एसिटाइल कोहेसिन થી स्टार्ट થશે. ओके, आ Krebs साइकिल ही हमें देखना है, ये नहीं देखना है. आ तो શું છે? ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ पाइरुवेट, राइट? तो ये हमें कंसीडर नहीं करना है, यही देखना है. तो यहाँ पे एक Krebs साइकिल देखिए, 1 2 3, सॉरी ये इसका है 1 2 and 3. और यहाँ पे देखो 1 2 and 3 मींस टोटल कितने हो गए? 6 NaDH2 यहाँ पे. एक Krebs साइकिल में, एक दूसरे Krebs साइकिल में एक Krebs साइकिल में 3 है, 1 2 and 3, और दूसरे में 3. टोटल कितने हुए? 6 NaDH2 में. यहाँ पे Krebs साइकिल के लिए लिख देती हूँ 6 NaDH2. ओके. अब FADH2 की बात मुझे अभी नहीं करनी है, विल सी लेटर. ओके, चलो. अब इसके हाइड्रोजन यहाँ से और इलेक्ट्रॉन पास होके यहाँ तक पहुँचते हैं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो एक्यूमुलेट होता है उसके ऊपर से हमें एटीपी काउंट करनी है. चलो. मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4, क्योंकि 4 कॉम्प्लेक्सेस है. ओके, लिख देते हैं कॉम्प्लेक्सेस. चलो. कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, and then 4.
ये एनर्जी रिच कंपोनेंट है, इसमें एनर्जी स्टोर हुई है, यू नो दैट। हाइड्रोजन एक्सेप्टर है। और ये स्टेजेस ऑफ व्हाट एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर आपको ऊपर लिखना है तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ हाइड्रोजन एक्सेप्टर और यहाँ पे लिख सकती हूँ फेजेस ऑफ व्हाट एरोबिक रेस्पिरेशन, स्टेप्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। હવે તમને ખબર છે એરોબિક રેસ્પિરેશન એટલે કે ઝાડક શ્વસનના તબક્કાને લખ્યા છે। હવે કોઈ પૂછે इंग्लिश मीडियम वाला ने स्पेशली गुजराती मीडियम वाला ने कहूं છું कि अगर कोई पूछे कि एरोबिक रेस्पिरेशन एन एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है तो उसका गुजराती अब तो आपको आना चाहिए। एरोबिक यानी कि झारक श्वसन, एन एरोबिक यानी कि अझारक श्वसन। चैप्टर पूरा होने को आया। मेन फेजेस हमने पढ़ लिए, अब कितने एटीपी बन रहे हैं वो देख रहे हैं। ओके चलो, these are the hydrogen acceptor। ओके और ये कॉम्प्लेक्सेस हमने ड्रॉ किए, लिखे हैं। कितने प्रोटॉन पास होते हैं वो हमें लिखने हैं। तो यहां पे हमें मिलेंगे टोटल पम्प्ड प्रोटॉन। ओके और फिर बाद में उसके ऊपर से हमें एटीपी को काउंट करना है। देखिए आप देखिए NaDH2 दो है, दो के लिए हम बात करेंगे। देखो एक NaDH2 का ऑक्सीडेशन होगा व्हेन ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ NaDH2 occurs at that time कॉम्प्लेक्स 1 कितने हाइड्रोजन इस तरफ पास करवाता है? 4 हाइड्रोजन। अब दो NaDH2 है, मैंने लिखे है तो कितने में लिखूंगी? तो ऑब्वियसली मुझे लिखना पड़ेगा 8 हाइड्रोजन। कॉम्प्लेक्स 1 के द्वारा 8 हाइड्रोजन यहां पे। कॉम्प्लेक्स 2 के द्वारा जब इसके इलेक्ट्रॉन पास होते आ रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स 2 के द्वारा नहीं, कुछ भी पास नहीं हो रहा है, यहाँ पे डैश कर देता है। कॉम्प्लेक्स 3 देखिए आप, 4 हाइड्रोजन। एक NaDH2 के लिए हमने कितने लिखे? 2। तो यहाँ पे भी कितने लिखूंगी? 8 हाइड्रोजन अगेन। और फिर कॉम्प्लेक्स 4 के पास आइए। चलो अब इलेक्ट्रॉन यहाँ तक पहुंचे। देखिए एक NaDH2 के लिए मैं कितने लिखूंगी? 2। तो मैंने 2 लिखे हैं, कितने लिखूंगी? 4। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन। ओके सी वी हैव काउंटेड अबाउट 2 NaDH2, ये वाला ग्लाइकोलाइसिस के अभी काउंट किया है, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन यहाँ पे आप देखिए कितने हुए। यहाँ पे अगर आप देखिए तो कितने हुए? 20 प्रोटॉन, राइट। 20 हो गए। हाइड्रोजन बाजू में नहीं लिख रही हूँ, आपको पता पहले ही मैंने ऊपर लिख दिया है। ओके चलो अब देखते हैं कि हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम व्हेन दिस हाइड्रोजन मींस जो यहाँ पे 20 अभी 4 और ये 2 8 1 के लिए है तो कितने 2 NaDH2 के लिए हाउ मेनी प्रोटॉन्स accumulated over here? you know that कि 20 हमने काउंट किए 20। अब 20 इस तरफ जाएंगे तो कितने एटीपी बनेंगे वो हमें देखना है। एटीपी सिंथेस, तो मैं हेडिंग दूंगी यहाँ पे एटीपी सिंथेस। कितने एटीपी बनेंगे तो दैट इज डिपेंड्स ऑन व्हाट, तो हमें काउंट करना है कितना। टेक्स्ट में जो दिया है वो तो है, वो बाद में देखेंगे। चलो अभी तो क्या है, मैंने बोला था कि ये अगर हम काउंट कर लेंगे ये 4 हाइड्रोजन इस तरफ गए तो एक एटीपी बनेंगे। ओके तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि भाई हमें इस तरह काउंट करना है कि 4 प्रोटॉन रिस्पॉन्सिबल फॉर 1 एटीपी
एटीपी मॉलिक्यूल। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि कितने एटीपी बनेंगे। अब देखिए यहाँ पे 20 है तो 4 बराबर 1, तो 20 यानी कि कितने बनेंगे, तो वो हमें लिखना है 5 एटीपी। क्या हो गया, 5 एटीपी प्रोड्यूस हो गया। अब देखिए दूसरा ये वाला, इसका तो काम खत्म, चलो आगे बढ़ते हैं। NaDH2 यहाँ पे है, सेम प्रोसेस रहेगी। आप सोचिए सेम ही हम काउंट करेंगे। ये क्रेस्ट साइकिल वाला हम देखे, क्रेस्ट साइकिल के पहले वाला हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 NaDH2 है, सेम ही फिगर में लिखूंगी क्योंकि यहाँ पे 2 वाले थे। चलो लिख देते हैं सेम ही, मैंने जो समझाया वही। यहाँ पे एक हाइड्रोजन, कॉम्प्लेक्स 2 के द्वारा कुछ नहीं, यहाँ पे अगेन एक हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, टोटल हुए कितने 20 सेम, बिकॉज इतने यहाँ पे मैंने पूरा समझाया कि कैसे हो रहा है। आई एक्सप्लेन कि how many protons accumulate over here and why, that I have explained. तो similar thing occurs about this NaDH2। मैं ये NaDH2 के लिए फिर से एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, वही फिगर यहाँ पे हम लिख देते हैं, बराबर। जे આ NaDH2 ના જે રીતે પ્રોટોન અહીંયા પાસ થયા હતા એના બે અહીંયા ઇલેક્ટ્રોન પહોંચે ત્યાં સુધીમાં, તો એવી જ રીતે આપણે સમજવાનું છે, बराबर। तो આપણે सेम फिगर यहाँ लखी આપીએ છીએ। ओके जो तो टोटल कितने 20/4 कितने हो गए 5 एटीपी अगेन यहाँ पे लिखूंगी मैं। ओके चलो 6 NaDH2 के लिए 6 टाइम्स काउंट कर लीजिए। एक के लिए 4 पास हुए थे, तो 6 के लिए कितने हो गए 24। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 24 प्रोटॉन। कॉम्प्लेक्स 2 कोई भी प्रोटॉन को इस तरह फॉर्म नहीं करता है। आप देखिए यहाँ पे कॉम्प्लेक्स 3 के लिए कितने लिखेंगे, आप देखिए यहाँ पे देखिए कॉम्प्लेक्स 3 वही अमाउंट लिखेंगे 24, 4 ही जा रहा है तो 6 टाइम्स कर लीजिए। अगेन 24 लिखने हैं मुझे, तो यहाँ मैं 24 लिखूंगी। कॉम्प्लेक्स 4 को आप देखिए, एक NaDH2 के लिए 2 लिखे हैं, 6 टाइम्स करें तो 12। यहाँ पे लिखेंगे 12 हाइड्रोजन आए होंगे। अब टोटल कर दीजिए, टोटल कितने आए होंगे इस तरफ देखिए 22, 24 2s are 48, 50 और 60 प्रोटॉन्स यहाँ पे एक्यूमुलेट हुए हैं। अब 4 इस तरफ जाएंगे, 4 इस तरफ जाएंगे, तो कितने एटीपी बनेंगे 15 एटीपी। ये तो NaDH2 से हो गए। चलो ये बात खत्म की, हमने NaDH2 की बात कर ली, पर आप याद कीजिए यहाँ पे FADH2 भी बनते हैं। FADH2 बनते हैं, उसका ऑक्सीडेशन होगा तो when oxidation of FADH2 occurs, देखो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि FADH2 का ऑक्सीडेशन होगा और FAD में कन्वर्ट हो जाएगा, तब उसके इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास हो गए। और यू नो दैट उसके इलेक्ट्रॉन कैसे पास होते हैं। अब ये भी आप बात सोच लीजिए कि मैंने कितने 6 7 8
9 और 10 6 7 8 9 10 molecules of NaDH2। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 10 बार आएंगे, 10 टाइम्स आएंगे, 10 टाइम्स, उसके 10 टाइम्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होंगे। एक का ऑक्सीडेशन हुआ, उसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया, एक वाटर मॉलिक्यूल बना, फिर दूसरा का ऑक्सीडेशन हुआ एंड अगेन इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आता है, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल बनेगा, है ना। यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल बनता है। तो हाउ मेनी वाटर molecules synthesize when oxidation of 10 molecules of NaDH2 occurs? 10 molecules। कितने? 10 वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे, 10 मॉलिक्यूल्स बनेंगे वाटर के। जब 10 NaDH2 का ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन of 10 molecules of NaDH2 leads synthesis of 10 molecules of water molecules। जब 10 NaDH2 का ऑक्सीडेशन होगा, જ્યારે 10 NaDH2 નો ઓક્સિડેશન થશે ત્યારે 10 પાણીના અણુ બનશે, રાઈટ। તો એ હવે આપણે NaDH2 ની વાત કરીએ। ચલો, अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन किस तरफ जाएंगे? यू नो दैट कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन ए से सेम वे आ गए यहाँ पे FADH2 पे इलेक्ट्रॉन इस तरह, कल हमने देखा था। तो यहाँ से इस तरह आएंगे तो हमें ये ध्यान में लेना है, किसके लिए? FADH2 के लिए, और ये ध्यान में लेना है। How many molecules of FADH2 synthesis during the Krebs cycle when one glucose oxidized? एक ग्लूकोज નો ઓક્સિડેશન થાય ત્યારે કેટલા FADH2 બને? તો હવે એક ગ્લુકોઝ નો ઓક્સિડેશન થાય ત્યારે બે Krebs cycle આપણે કાઉન્ટ કરવાના છે, 1 અને 2। તો સીધી વાત છે, 2 FADH2 Krebs cycle માં, બીજું ક્યાંય નથી બંધાયેલો હોય। 2 FADH2 લખું છું। और कितने? एक FADH2 के लिए मैंने लिखा है कि एक FADH2 यहाँ पे मैंने लिखा है, तो उसके इलेक्ट्रॉन यहाँ तक पहुँचते हैं और एक पानी का अणु बनता है। FADH2 में से एक FADH2 एक पानी का अणु बनाता है। तो तब कितने हाइड्रोजन मूव होते हैं, शिफ्ट होते हैं इस तरफ? तो के भाई 4 और ये 2, 6। और यहाँ से ये ऐसे जाएंगे तो ये 4 जाएंगे तो कितना? अब मैं वो बताती हूँ कि भाई 4 और ये 2 कितने हुए? 6। बट अब 2 FADH2 के लिए काउंट करना है हमें, तो 12 यहाँ पे लिखते हैं हम 12। इसके हम लिख देते हैं यहाँ पे 12 कॉम्प्लेक्स 2 कोई भी नहीं, अरे सीधा 12 ही लिखना है मुझे, सॉरी। कॉम्प्लेक्स 1 कितने हैं? तो एक FADH2 के लिए 4, 2 FADH2 के लिए 8 लिखने हैं मुझे यहाँ पे, 8 हाइड्रोजन। कॉम्प्लेक्स 3 के पास 8 हाइड्रोजन, क्योंकि कॉम्प्लेक्स 1 का हमें काउंट ही नहीं करना है, राइट? यहाँ से हम काउंट करेंगे। चलो, फिर ये काउंट करेंगे कॉम्प्लेक्स 4 का 2 हाइड्रोजन, तो टोटल कितने होंगे? 4 हाइड्रोजन। और कितने हो गए? 12। अब 12 टोटल, 12 प्रोटॉन हुए और 12 प्रोटॉन में से अब you know that कि 4 protons are responsible for synthesis of 1 ATP। when 4 proton यहाँ से इस तरफ पास हो गए तब एक ATP बनेगा। हाँ, ये प्रोटॉन जब यहाँ से जाते हैं तब ATP बनते हैं, you know।
तो अब सोचिए इसमें से कितने 3 एटीपी। अब टोटल ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के लिए हम टोटल अगर काउंट करें एटीपी तो कितने हुए आप देखिए 10 ऑलरेडी 25 6 7 8 28 एटीपी बने। अगर हम ये फिगर को ध्यान में रखें तो राइट 28 एटीपी बनते हैं। बट अब याद कीजिए मैंने बोला था जस्ट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट शटल सिस्टम दैट इज प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। सो कोश केंद्रित सजीव में शटल सिस्टम प्रेजेंट होती है। 2 शटल सिस्टम की बात की थी राइट तो वो शटल सिस्टम को अगर कंसीडर करा जाए तो क्या ये इतने 28 एटीपी बनेंगे? नो। शटल सिस्टम आप याद कीजिए किसके लिए शटल सिस्टम थी तो कि भाई जो रेडिएशन यहाँ पर प्रेजेंट है यार उसके लिए मुश्किल नहीं है दे कैन पास थ्रू दिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम। उसका तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा बट इसको अंदर आना है। साइटोप्लाज्मिक और ग्लाइकोलाइटिक और एक्सटर्नल जो माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं है वो NADH2 को अंदर आना पड़ेगा। ये बाह्य कणासूत्रीय NADH2 बोलिए ग्लाइकोलाइटिक NADH2 बोलिए और कोश रसीय NADH2 को अंदर आने के लिए हमने शटल सिस्टम एक्सप्लेन की थी। अगर वो हम यहाँ पे लगा दे तो बात अलग हो जाएगी। अब देखिए ये NADH2 है मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि ये NADH2 है तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ NADH2 वो किससे कन्वर्ट हो जाएंगे तो कि मैं NADH2 कन्वर्ट हो जाएंगे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ये NADH2 किससे कन्वर्ट हो जाएंगे NAD। कब तो कि भाई जब इसका ऑक्सीडेशन होगा यहाँ पे तो DHAP dihydroxyacetone phosphate get converted into you know that glycerol 3 phosphate glycerol 3 phosphate glycerol 3 phosphate वही शटल ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट वाली शटल ओके तो ये ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट बना और यू नो दैट जब वो अंदर जाएगा ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट तो क्या हो जाएगा इसमें से अगेन DHAP बनता है और फिर क्या हो जाएगा दिस NADH2 बराबर। यहाँ पे ये NADH2 है उसका ऑक्सीडेशन हुआ था बट यहाँ पे क्या हो जाएगा FAD का रिडक्शन होगा और FADH2 मिलेंगे हमें FADH2 मिलेंगे और ये FADH2 का अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा ये शटल सिस्टम के पास FAD में और इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएंगे यहाँ से नहीं जाएंगे NADH2 थे तो फिर यहाँ से इसके इलेक्ट्रॉन पास होने थे। तो बात यह है कि जब ये NADH2 अंदर आने की ट्राई करेगा अंदर आएगा और ये शटल सिस्टम यानी कि कौन सी शटल सिस्टम की बात कर रहे हैं हम ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट वाली शटल सिस्टम के द्वारा अगर NADH2 अंदर आए NADH2 ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल सिस्टम થી અંદર આવશે તો NADH2 અંદર આવે ત્યાં સુધીમાં કેમાં કન્વર્ટ થઈ જાય છે FADH2 માં કન્વર્ટ થઈ જાય ને હવે તમે વિચારો FADH2 નો ઓક્સિડેશન તો અહીંયા થશે કોમ્પ્લેક્સ 2 આગળ કોમ્પ્લેક્સ 1 કરેલું નહીં તો આ જગ્યાએ થશે તો સીધી વાત છે ને ઇલેક્ટ્રોન અહીંથી પાસ થશે एक्चुअली એના ઇલેક્ટ્રોન અહીંથી પાસ થવા જોઈતા હતા પણ નહીં થશે અહીંયાથી થશે તો એવું થશે તમે વિચારો અહીંયાથી પાસ થશે તો કેટલા ग्लिसरॉल 3 ફોસ્ફેટ વાળી ચેનલ એવી તો પછી આપણે કેન્સલ કરવાના થશે કે આપણે કેન્સલ કરી નાખવા પડે એક ગ્લિસરॉल 3 ફોસ્ફેટ વાળી શટલ ગ્લાયકોલિસિસ માટે આપણે આના માટે કાઉન્ટ કરીએ તો આ મેં આપણે લેવાનો अलग चौक लઉં છું
पॉसिबिलिटीज ये रहेगी कि यहाँ पे कुछ नहीं बनेगा, ये पॉसिबिलिटीज है। डैश, क्यों डैश किया? क्योंकि हमने कौन सी चैनल यहाँ पे सॉरी कौन सी शटल को कंसीडर किया है? ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट को, बराबर ना? ये यहां पे मुझे एरो करना था। कॉम्प्लेक्स 1 के पास हम इसका माइनस कर देंगे कि नहीं है कोई प्रोटॉन इस तरफ पंप नहीं हुए, इस तरफ किससे होते हैं? 3 से। यस, ये कंसीडर करना है, ये कंसीडर करना है। तो कितना हुआ? 12। कितने हो गए यहाँ पे? 12। और यहाँ पे अगर मैं 12 करूँ तो कितने एटीपी मिलेंगे मुझे? 3 एटीपी। अगर टोटल में इस तरह काउंट करूँ तो कितने मिलेंगे मुझे? तो कि भाई 25 एटीपी, है ना? देखिए यहाँ पे 3 एटीपी मिल गए हैं, पहले 5 थे तो 3 लेंगे तो हमें कितने मिलेंगे? सॉरी 26 एटीपी मिलेंगे। ओके चलो 26 एटीपी। तो पॉसिबिलिटीज कितनी हुई? 26 to 28 एटीपी अगर इस तरह काउंट करें तो। बट अब हमारे केस में क्या किया है कि भाई 4 प्रोटॉन इस तरफ जाएंगे तब 1 एटीपी, ऐसा नहीं है। टेक्स्ट में क्या दिया है? टेक्स्ट में ऐसा दिया है कि 2 प्रोटॉन अंदर जाएंगे, ये टेक्स्ट, तो 1 एटीपी बनेगा। ये टेक्स्ट वाला ऐसा दिया है। टेक्स्ट को कंसीडर करें तो कितने प्रोटॉन टोटल आप याद कीजिए। टेक्स्ट को अगर डायरेक्टली काउंट कर लेते हैं ऐसे 4, बराबर ना? बैलेंस शीट नहीं बनाते हैं, टोटल यहाँ पे काउंट कीजिए कितने प्रोटॉन? 60, 80, 100, 112। अब इसको 2 से डिवाइड करें, 2, क्योंकि 4 से एटीपी बोल रहे थे। अगर हम ये टेक्स्ट वाला अगर लगाए, बराबर लॉजिक, तो 2 प्रोटॉन्स आर रिस्पांसिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ 1 एटीपी, ऐसा अगर आप बोले, इफ ये टेक्स्ट में दिया है, ऐसे अगर हम काउंट करने जाए तो क्या हो जाता है? आप देखिए, ऐसे करना पड़ेगा। और कितने एटीपी बन सकते हैं आप सोचिए, यहाँ पे कितने? 56 एटीपी हमें मिलेंगे ऐसे। अगर ये सभी प्रोटॉन जो यहाँ पे एक्यूमुलेट हुए हैं ऐसे हम काउंट करें तो, बट हम तो टेक्स्ट में तुमने दिया है 36 एटीपी या 38 एटीपी, है ना? तो वो भी बात हमें ध्यान में रखनी है। ये ऐसे का अगर टेक्स्ट का अगर हम सोचेंगे तो इतने एटीपी बढ़ेंगे। इसको देख के यहाँ पे 4, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, ये सब देख के हम काउंट करेंगे तो 1, 1, 2 પ્રોટોન્સ મૂવ થયા હોય આગળ જુઓ ને ઈ પછી પાછા રિટર્ન થશે ત્યારે આપણને કેટલા 56 એટીપી મળી શકે જો 2 પ્રોટોન બરાબર 1 એટીપી આપણે કાઉન્ટ કરવું હોય તો। પછી એક વસ્તુ મારે કહેવાની છે કે જો એક FADH2 ના ઇલેક્ટ્રોન્સ અહીંથી પાસ થઈને આવે ત્યારે એક પાણીનો અણુ બનશે અને બીજા FADH2 ના આવશે એટલે બીજો પાણીનો અણુ। તો when oxidation of 2 FADH2 occurs at that time, how many water molecules synthesized? 2। तो टोटल कितने वाटर मॉलिक्यूल बने? 2 और ये प्लस 12H2 synthesized। क्लियर? तो वो ध्यान में रखना है। और भी देखिए, ये तो मैंने 28 वाला 112 वाला अगर माइनस कर दे तो इस हिसाब से कम एटीपी बन सकते हैं। 28 है बट 12 लो तो
अगर 12 को काउंट करें तो कितने कम करने हैं, इसमें से 2 एटीपी माइनस कर देना है हमें। तो इसको माइनस से अगर हम 2 एटीपी कर दे तो यहाँ पे 1 प्रोटॉन माइनस करने हैं हमें, 1 प्रोटॉन हमें माइनस करने हैं। तो हमें मिलेंगे 54 है ना। तो ये हमें राइट। ये शटल सिस्टम, कौन से शटल सिस्टम यूज हुई तो ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट